हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्बास माऊजी। आज हम लोग सीखने वाले हैं एसक्यूएल। हम लोग का एसक्यूएल का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, फिर हम लोग एसक्यूएल लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एसक्यूएल इज़ ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। व्हाट इज़ एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL stands for Structured Query Language. SQL lets you access and manipulate databases. SQL became a standard of the American National Standards Institute (ANSI) in 1987 and ISO in 1987. What can SQL do? SQL can execute queries against a database. SQL can retrieve data from a database. SQL can insert a record in a database. SQL can update. SQL can delete. SQL can create new database. SQL can create new table in a database. SQL creates stored producers in a database. SQL can create view in a database. SQL is a standard, but SQL is an ANSI and ISO standard, but there are different versions of the SQL language. However, to be compliant with the ANSI standard, they all support at least the major commands such as select, update, delete, insert, where in a similar manner. RDBMS किसके लिए स्टैंड होता है? फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RDBMS is the basis for SQL and for all modern databases such as MS SQL Server, IBM DB2, Oracle MySQL, Microsoft Access. The data in RDBMS is stored in database objects called table. A table is a collection of related data entries and it consists of columns and rows. Look at the customer table. Example, ये कमांड है. इसमें क्या करता है ये कमांड से? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, लाइक कस्टमर के टेबल से सब डेटा सिलेक्ट करता है. ये कमांड है, हम लोग आएंगे इसके लिए. अभी खाली आप आउटपुट देखो, ये हम लोग का कस्टमर का टेबल है, ये इसका आउटपुट है. अगर ये क्वेरी में इंसर्ट करूंगा मेरे एसक्यूएल सर्वर में, तो मेरे को जो भी कस्टमर के टेबल है तो उसके रिकॉर्ड दिखा देगा. एवरी टेबल इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर एंटाइटल्स कॉल्ड फील्ड्स. The fields in the customer table consist of customer ID, name, contact name, address, city, postal code, and country. A field is a column in a table that is designed to maintain specific information about every record in the table. A record, also called a row, in each individual entry that exists in a table. For example, there are 91 records in the above customer table. A record is a horizontal entity in a table. A column is a vertically. Database table. A database most often contains one or more tables. Each table is identified by a name, example customers or orders. Any name you can give to your table. Keep in mind that SQL keywords are not case sensitive. Like अगर मैंने लिखा select star from customers, तो अगर select आप स्मॉल लेटर में लिखे या बिग लेटर में, हम लोग से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो नॉट केस सेंसिटिव है. Semicolon after SQL statements. Some database systems require a semicolon at the end of each SQL statement. Semicolon is the standard way to separate each SQL statement in a database system that allow more than one SQL statement to be executed in the same call to the server. Some of the most important SQL commands are select. क्या करता है? सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. देन आता है अपडेट. अपडेट क्या करता है? अपडेट डेटा इन अ डेटाबेस. फिर आता है डिलीट कमांड. डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, इंसर्ट अ डेटाबेस और टेबल. इंसर्ट न्यू डेटा इनटू अ डेटाबेस और इंसर्ट न्यू डेटा इनटू न्यू टेबल. इनटू नॉट न्यू टेबल, करंट टेबल, न्यू टेबल, प्रीवियस टेबल, कौन सा भी एक टेबल. क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट न्यू डेटाबेस. ऑल्टर डेटाबेस, उसको अगर मॉडिफाई करना है हमको डेटाबेस को, तो यहाँ से कर सकते हैं. क्रिएट टेबल, इसको हम लोग अगर न्यू टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड है. ऑल्टर टेबल को ऑल्टर करना है तो यहाँ से है. और ड्रॉप टेबल, अगर उसको पूरा टेबल को डिलीट करना है. ओके, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स. सेकेंड में हम लोग के पास आता है एसक्यूएल डेटाबेस. डेटाबेस कैसा क्रिएट होता है? उसके लिए एक सिंटैक्स है जो है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम एंड सेमीकोलन.
द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। अगर एकदम आप स्टार्ट से करो तो डायरेक्ट आप टेबल नहीं बना सकते, सबसे पहले आपको डेटाबेस बनाना है, फिर डेटाबेस, आपकी डेटाबेस के अंदर आप टेबल बना सकते हो। विदाउट डेटाबेस यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट्स अ डेटाबेस कॉल्ड टेस्ट डीबी। यहाँ क्यों ऐसा टेस्ट डीबी, क्योंकि मैंने यहाँ उसका नेम दे दिया डेटाबेस। एग्जाम्पल, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी। एसक्यूएल ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट, द एसक्यूएल ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट सिंटैक्स कैसा है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो उसमें हम लोग अभी इसको करके देखेंगे। ये मेरा एसक्यूएल का वो है, सॉफ्टवेयर है। तो इसमें यहाँ मेरे पास रेडी में दिखा रहा है डेटाबेस के अंदर प्रैक्ट 1 है और शेक है और मोर देन डेटाबेस। रिफ्रेश करूँगा तो इतने ही है। सपोज मेरे को एक डेटाबेस अब्बास के नाम पे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या कमांड था, क्रिएट डेटाबेस अब्बास, सिलेक्ट करूँगा, F5 से मेरा एग्जीक्यूट होता है। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ मेरे पास नहीं दिखा तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा तो अब्बास डेटाबेस क्रिएट हो गया। यही डेटाबेस को मेरे को डिलीट करना है तो मैं क्या कमांड करूँगा, ड्रॉप डेटाबेस अब्बास, इसको सिलेक्ट करूँगा, F5 से रन कर दूंगा और यहाँ मैं जाके रिफ्रेश कर दूंगा तो अब्बास निकल गया। अगेन इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा तो आ जाएगा। यहाँ रिफ्रेश, यहाँ भी देखना है तो आप रिफ्रेश कर सकते, तो अब्बास दिख जाएगा। आपको डिलीट करना है डेटा को, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना और यहाँ फिर से रिफ्रेश करना तो आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। ये था हम लोग के दो बेसिक कमांड्स जो है क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस के लिए। अभी हम लोग जाते हैं एसक्यूएल डेटा टाइप्स में। सबसे पहले आपको टेबल स्टार्ट करने से पहले आपको डेटा टाइप्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। SQL developer must decide what type of data that will be stored inside each column when creating a table। तो आप जब भी टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको मालूम है हर एक कॉलम के लिए क्या आपको डेटाबेस देना है। सपोज आप एड्रेस कॉलम का नाम रखें पर उसका डेटाबेस इंटीजर रखे तो वो एड्रेस नहीं लेगा, क्योंकि एड्रेस किस में आता है, कैरेक्टर स्टोर में। तो हर एक के लिए यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हूँ, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, मैक्सिमम साइज है और स्टोरेज है। अभी अगर कैर लिया मैं डेटा टाइप, अगर मैं खाली कैर लिया तो उसकी फिक्स्ड विद है कैरेक्टर स्ट्रिंग ओनली 8000 कैरेक्टर मैक्सिमम साइज। फिर वेर केयर आता है, वेर केयर आता है यहाँ वेरिएबल विद कैरेक्टर स्ट्रिंग 8000 कैरेक्टर पर इसकी स्टोरेज है 2 बाइट्स प्लस नंबर ऑफ कैर्स। वेर केयर मैक्स वेरिएबल विद कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये तीनों सेम है, खाली इसमें क्या डिफरेंस है, एक में ये दो में मैक्सिमम साइज सेम है पर स्टोरेज डिफरेंट है। थर्ड में क्या है, कैरेक्टर का मैक्सिमम साइज ज़्यादा है और स्टोरेज सेम है वेरकेयर के जैसा। टेक्स्ट क्या करता है, 2 GB ऑफ टेक्स्ट डेटा प्लस उसकी स्टोरेज 4 बाइट्स प्लस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एन केयर क्या करता है, यूनिकोड स्ट्रिंग्स, तो इसकी यूनिकोड स्ट्रिंग्स कितनी है हम लोग के पास 4000 है। फिर एन केयर वेरिएबल विद देता है ओनली खाली 4000 की मैक्सिमम साइज और यूनिकोड भी देता है सेम 4000 कैरेक्टर्स की। एन वेरकेयर मैक्स वेरिएबल विथ यूनिकोड स्ट्रिंग्स और इसकी जो मैक्सिमम साइज है ज़्यादा है। तो आपको जो भी यूज में आएगा वो आप लिख देना। फिर न्यूमरिक में आते हैं। न्यूमरिक में सबसे पहले बिट आता है। बिट के क्या है, इंटीजर दैट कैन बी 0, 1 और नल, तो इसको किसके अंदर स्टोर करेंगे, बिट में। फिर सेकेंड आता है TINY इंट, टिनी इंट अलाउज होल नंबर्स फ्रॉम 0 to 255। फिर आता है स्मॉल इंट अलाउज होल नंबर बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर और इसका स्टोरेज इतना है। फिर आते हैं इंटीजर अलाउज होल नंबर बिटवीन दिस रेंज टू दिस रेंज और इसका स्टोरेज है 4 बाइट। बिग इंट ये रेंज से लेके ये रेंज तक वो अलाउज करता है होल नंबर और इसकी स्टोरेज 8 बाइट है। डेसिमल वैल्यूज करना है आपको, तो अलाउंस नंबर फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज और उसका जो है P स्टैंड फॉर द पेरीमीटर इंडिकेट्स द मैक्सिमम टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट दैट कैन बी स्टोर्ड बोथ टू द लेफ्ट एंड टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। P मस्ट बी अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 38 और अगर हम लोगों ने कुछ नहीं डाले तो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 18। The S perimeter indicates the maximum number of digits stored to the right of the decimal points. S must be a value from 0 to P. Default value is 0. एक इसके लिए डेसिमल वैल्यूज। फिर न्यूमरिक आता है।
न्यूमेरिक्स में भी यही नंबर से अलाउ करता है यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज में, और द पी पैरामीटर्स और एस सेम जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया वही है। फिर फ्लोट आता है, फ्लोट के उसमें ये रेंज से लेके ये रेंज तक, और द एन पेरीमीटर इंडिकेट वट एवर द फील्ड शुड होल्ड 4 और 8 बाइट्स। फ्लोट 24 होल्ड्स ए 4 बाइट फील्ड एंड 53 होल्ड्स एन 8 बाइट फील्ड। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इज 53। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम लोग ने नहीं दिए कुछ तो डायरेक्ट वो क्या लेंगे 8 बाइट की। डेट एंड टाइम्स के लिए आता है, अगर आपको डेट एंड टाइम का इंसर्ट करना है कोई वैल्यू तो डेट एंड टाइम के लिए यहाँ है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, उसका स्टोरेज इतना है। खाली डेट चाहिए तो इसके लिए डेट डेटा टाइप है, और खाली टाइम चाहिए तो ओनली टाइम डेटा टाइप। तो ये थे हम लोग के डेटा टाइप्स के पूरा इंट्रोडक्शन। टेबल में जो भी हम लोग को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एसक्यूएल के अंदर यूज होगा ये ही डेटा टाइप्स है। फिर हम लोग के पास आता है टेबल्स। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल के अंदर। इसका एकदम सिंपल सिंटैक्स है जो है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ब्रैकेट ओपन, इसमें जो भी आपको कॉलम चाहिए, सपोज मेरे को कॉलम नेम चाहिए उसका डेटा टाइप, कॉलम एज उसका डेटा टाइप, कॉलम एड्रेस और उसका डेटा टाइप, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। The column parameters specify the name of the columns of the table. The data type parameters specify the table of data the column can be hold. Example varchar, integer, date, etc. अभी यहाँ हम लोग ने एक बनाएंगे क्रिएट टेबल पर्सन्स, पर्सन आईडी इंटीजर लिया, लास्ट नेम वेरकेर लिया, फर्स्ट नेम वेरकेर लिया, एड्रेस को भी वेरकेर लिया, सिटी को भी वेरकेर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इसमें बन गया मेरा टेबल। जो भी कॉलम मैंने दिया, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी 5 है, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ इंसर्ट नहीं किया। द पर्सन आईडी कॉलम इज ऑफ टाइप इंट एंड विल होल्ड एन इंटीजर ओनली। The last name, first name, address and city columns are type of varchar and will hold characters and maximum length of this field is 255 क्योंकि मैंने इसके ब्रैकेट में क्या डाला 255। The insert into statement is used to insert new records in a table. Insert into syntax. It is possible to write insert into statement in two ways. फर्स्ट वे है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो भी हम लोग ऊपर देंगे और उसके अंदर कॉलम 1, 2, 3 के नाम और उसकी वैल्यूज़। सेकेंड है डायरेक्ट इंसर्ट इनटू, यही इजी वे है, सब यही यूज़ करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज़ डायरेक्ट दे देना, वो उसके हिसाब से स्टोर कर देगा। जो आपका कॉलम 1 है वो आप उसके कॉलम 1 के वैल्यू 1 में दे देना, कॉलम 2 वैल्यू 2 में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन आईडी की वैल्यू आपने दे दी है थर्ड वैल्यू, पर पर्सन आईडी तो फर्स्ट वैल्यू है, तो पर्सन आईडी की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू में होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखा के कराऊंगा तभी आप समझ जाएंगे। अभी ये इसका लाइव एग्जांपल है इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। कस्टमर नेम के अंदर ये फर्स्ट वे से किया उसने, तो इसमें कैसे कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री के अंदर ये वैल्यूज़ इंसर्ट किया। और अगर डायरेक्ट करना है तो इंसर्ट इनटू, सेम अगेन फिर से वही तरीका यूज़ किया उसने, इंसर्ट इनटू कस्टमर, उसके कॉलम के नेम दिया। अगर खाली 3 में डालना है, लाइक पूरे कॉलम्स में नहीं डालना है, तो क्या करेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। कस्टमर नेम के अंदर इंसर्ट करना है सिटी के और कंट्री के, तो कस्टमर नेम के अंदर जो भी डालना है, सिटी के अंदर जो भी डालना है और कंट्री के अंदर जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। फिर आता है एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट क्या करता है, टेबल को अगर आपको अपडेट करना है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 वैल्यू 2, वेयर कंडीशन। अभी इसमें अगर मेरे को एक कंडीशन, बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, नोटिस द वेयर क्लोज। In the update statement, the where clause specify which records that should be updated. If you omit where clause, all record in the table will be updated. अगर आपने बिना कंडीशन डायरेक्ट अपडेट किए तो वो क्या करेगा, पूरे टेबल को ले लेगा। और अगर आपने एक कंडीशन रखे कि अगर जिसकी भी एज मोर देन 18 है खाली उन लोग को अपडेट करो, तो वो उसके हिसाब से। और अगर आपने कंडीशन नहीं रखे तो सबको वो अपडेट कर देगा। अपडेट कस्टमर, सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू जो भी आपको देना है सिटी का ये देना है। वेयर किसका अपडेट करना है, जिसका कस्टमर आईडी इक्वल टू 1 है। तो देखो उसका कस्टमर नेम जो भी ऊपर दिए थे हम लोग वो हो गया, कॉन्टैक्ट नेम, सॉरी कॉन्टैक्ट नेम जो भी था ऊपर, उस सिटी उसकी ये। और अगर मैंने वेयर नहीं डाला तो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता हो। अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स में, मल्टीपल रिकॉर्ड्स में कैसा होएगा, अपडेट कस्टमर, सेट कॉन्टैक्ट नेम इक्वल टू जॉन, वेयर कंट्री इक्वल टू मैक्सिको।
तो अभी जी किसकी अगर कंट्री मैक्सिको है तो उन लोग का नाम क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नेम जॉन। ओके मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स में। अब भी अगर यहाँ 10 रिकॉर्ड्स थे जिसकी कंट्री मैक्सिको है तो उन लोग का कॉन्टैक्ट नेम क्या हो जाएगा, जॉन। अपडेट वार्निंग अगेन यहाँ दिखाया, बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड, इफ यू ओमिट वेयर क्लोज और रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड। एग्जाम्पल, अपडेट कस्टमर सेट कॉन्टैक्ट नेम जॉन, तो सबका जॉन हो गया क्योंकि मैंने कुछ वेयर क्लोज दिया ही नहीं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी, तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, जो भी दिखा उसको कॉन्टैक्ट नेम में सबको वो अपडेट कर देगा। एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट, द एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है, इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। सेम यहाँ अगर आपने कंडीशन नहीं दिए तो डायरेक्ट क्या कर देता, पूरा टेबल को डिलीट कर देगा। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इक्वल टू दिस, तो ये रिकॉर्ड को क्या कर देगा वो डिलीट। फिर आता है हम लोग का एंडिंग में डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और डिलीट फ्रॉम कस्टमर, ये उसका सिंटेक्स है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर क्या डिलीट करना है आपको, वेयर कस्टमर नेम वो वेयर के अंदर डाल देना। सपोज मेरे को एज डिलीट करना है, जिसकी भी एज 18 है उसको डिलीट करो, तो वेयर एज इक्वल टू 18। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट क्या करेगा, द एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट ड्रॉप कर देता है टेबल को, ड्रॉप टेबल टेबल का नाम, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। फिर आता है ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट क्या करता है, जो पूरा अंदर रिकॉर्ड है वो डायरेक्ट उसको तुरंत को सबको डिलीट कर देता है विदाउट वेयर क्लोज। वो आप इस डिलीट में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर डिलीट में आपने वेयर कंडीशन नहीं दिए, वेयर क्लोज नहीं दिए, तो वो भी पूरा डेटा को डिलीट कर देता है। और अगर आपको ट्रंकेट यूज़ करना है, ट्रंकेट क्या करता है, इज यूज टू डिलीट द डेटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट द टेबल इट सेल्फ। ये क्या करता है, खाली जो रिकॉर्ड है टेबल के अंदर उसको सबको डिलीट कर देता है। फिर आता है ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, ये ऑल्टर क्या करता है, ऑल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम। सपोज मेरे को एक ऐड कॉलम देना है, उसका डेटा टाइप भी ऐड करना पड़ेगा। सपोज मैंने किया हूँ ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड ईमेल, उसको वेयर केयर दे दिया। फिर अगेन ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम के लिए, अगर ऐड करना है तो ऐड ओनली, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। ये एग्जाम्पल है इसका, ऑल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कॉलम ईमेल, तो ईमेल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ऑल्टर टेबल टेबल का नाम, ऑल्टर कॉलम, अगर एक स्पेसिफिक कॉलम को आपको ऑल्टर करना है तो कैसे, ऑल्टर टेबल पर्सन, ऑल्टर कॉलम डेट ऑफ बर्थ, उसका डेटा टाइप मैंने दे दिया ईयर। ड्रॉप अ कॉलम तो सेम, ऑल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कॉलम डेट ऑफ बर्थ। तो हम लोग के यहाँ जो भी क्वेरीज थे, जो भी सिंटैक्स और कमांड्स थे, वो एक एक हम लोग एग्जीक्यूट करते रहेंगे। हम लोग कौन सा अभी डेटाबेस यूज कर रहे हैं हम लोग, अभी सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, अब बस क्रिएट टेबल कस्टमर्स। अभी इधर इसके कॉलम्स के नाम देखो, जैसा इधर दिया है वैसा, टेबल क्रिएट टेबल लिख दिया, क्रिएट टेबल कस्टमर्स उसका नाम दे दिया, उसके अंदर ब्रैकेट खोल के कॉलम 1 का डेटा टाइप, कॉलम 2 का, जैसा यहाँ क्वेरी में पर्सन आईडी लास्ट नेम, यहाँ हम लोग करेंगे पर्सन आईडी, उसका क्या दे दिया इंटीजर, कॉमा, लास्ट नेम वेयर केयर 255, कॉमा, फिर क्या लिया, फर्स्ट नेम वेयर केयर और एड्रेस, यहाँ जाऊँगा एफ नेम वेयर केयर 255, अगेन फिर एड्रेस को क्या दिया, वेयर केयर 255, फिर सिटी वेयर केयर 255 ब्रैकेट क्लोज, सिलेक्ट किया, F5 किया, कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट कर दिया। हम लोग को देखना है वो टेबल को, तो सिलेक्ट, जो हम लोग का पहला कमांड था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है कस्टमर्स, सिलेक्ट किया
और F5, तो ये रिज़ल्ट आ गया। इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं दिख रहा है। इसके अंदर इंसर्ट करना है, SQL क्रिएट टेबल का हो गया, इसका आउटपुट तक भी हो गया। अभी इंसर्ट इनटू हम लोग सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और डायरेक्ट वैल्यूज़। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। यहाँ मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करूँगा, जो भी मैं सबसे पहला पर्सन आईडी में मैं दे दिया 75, फिर लास्ट नेम में दे दिया माऊजी, फर्स्ट नेम में दे दिया अब्बास, एड्रेस में दे दिया कल्याण, फिर सिटी में दे दिया मुंबई। हो गया मेरा ये पूरा 5 जो मैंने डाला पूरा यहाँ दे दिया। इसको सिलेक्ट करके F5 किया, सेमीकोलन भूल गए तो यहाँ सिलेक्ट करके फिर से हम लोग कमांड इंसर्ट करेंगे। एक मिनट, हम लोग से कुछ गलती हो रही है। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज़ लिखना भूल गए, वैल्यूज़ सिलेक्ट करूँगा, F5 आ गया। अगेन ये क्वेरी चलाऊँगा मैं और इसको F5 करूँगा तो फाइल वैल्यू आ गई। सेम इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C, यहाँ जाके V और उसका डायरेक्ट मैं चेंजेस करूँगा। एक मुंबई रखा, थाने, फिर यहाँ मुंबई, 2 मुंबई 2 थाने, और यहाँ मैं नाम चेंज करूँगा। यहाँ मझगांव रखा, यहाँ रखूँगा डोंबिवली, और यहाँ करजत। अब्बास की जगह में जो फर्स्ट नेम में दूसरा सफ़ा, तीसरे में शाहबाज, और यहाँ मैं दे दिया मोहम्मद। सरनेम चेंज कर दूंगा, यहाँ मुकद्दम, खान और शेख। और यहाँ से अभी मैं होम तक जाऊँगा, ये सिलेक्ट करूँगा, F5 कर दिया, 1 रोज इफेक्टेड 3 टाइम आया। फिर अगेन यही SQL क्वेरी डाल दूँगा, तो इसमें मेरे को जो भी दिया वो कर दूँगा। और लोग का मैंने आईडी, पर्सन आईडी चेंज नहीं किया। ये हो गया था इंसर्ट इनटू। फिर SQL अपडेट स्टेटमेंट, अगर मेरे को अपडेट करना है, सेट अपडेट टेबल नेम कॉलम की वैल्यू, ये देखो यहाँ अपडेट कस्टमर्स, सेट कॉन्टैक्ट नेम एज और सिटी एज दिस वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा, सेम ये जो क्वेरी है मेरा अपडेट कस्टमर, अपडेट कस्टमर्स, सेट एल नेम इक्वल टू शेख और सिटी इक्वल टू लंदन, वेयर यहाँ मैं कंडीशन दे दूंगा क्या, वेयर क्या होना चाहिए, वेयर एल नेम इक्वल टू माऊजी। इसको सिलेक्ट किया, F5 किया। अभी किसका खाली चेंज होगा, जिसका लास्ट नेम माऊजी था। तो ये देखो, फर्स्ट अब्बास का माऊजी था तो उसका लास्ट नेम शेख हो गया और उसका सिटी लंदन हो गया। ये था हम लोग का अपडेट वो कमांड। अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो कॉन्टैक्ट नेम इक्वल टू जो भी आपको, अभी सपोज मैंने रख दिया, सबका एल नेम क्या होना चाहिए, लास्ट नेम क्या होना चाहिए, सबका खान होना चाहिए। तो कैसा करूँगा, सेम अपडेट कस्टमर्स, सेट एल नेम। अगर मेरे को अभी फॉर एग्जांपल पर्सन आईडी सबकी चेंज करना है, तो
तो अपडेट कस्टमर सेट पर्सन आईडी इक्वल टू, एक का 75 है, शेख का अब्बास का वो छोड़ देंगे, सफ़ा मुकद्दम का मेरे को पर्सन आईडी चेंज करना है। तो मैं क्या कर दूंगा 74 वेयर क्या होना चाहिए फिर एल नेम, वेयर एल नेम इक्वल टू मुकद्दम, और उसको होम तक सिलेक्ट करके अपडेट। ये एक हो गया। फिर अभी जाके मैं चेक करूँगा, हो गया 74। फिर अगेन पर्सन आईडी अगर मेरे को उसको करना है 73, तो क्या करूँगा, इसका क्या करने का है हम लोग को एल खान, और उसको सिलेक्ट करके अपडेट। ये भी हो गया। और ये मैं जाऊँगा इसको फिर से सिलेक्ट कर दूँगा। फिर अभी शेख का 2 है, तो इसमें क्या करूँगा मैं एल नेम हटा के एफ नेम रख दूँगा। यहाँ सबसे पहले 72 और यहाँ एफ नेम का किसका अभी मेरे को चेंज करना है, मोहम्मद का। सिलेक्ट किया F5 और इसको जाके होम से कर दिया। हो गए सबके पर्सन्स आईडी। अभी अगर मल्टीपल करना है, सपोज अभी ये जो मल्टीपल था हम लोग के पास, कॉन्टैक्ट नेम जॉन, जिसकी भी कंट्री, अभी सपोज अगर मैं यहाँ रख दिया पर्सन आईडी कितना होना चाहिए 80, जिसका एल नेम इक्वल टू शेख है, तो जिसका भी लास्ट नेम शेख है उसका क्या हो जाएगा पर्सन आईडी 80। ये सिलेक्ट करा F5 कर दिया और यहाँ में गया ऐसे, तो शेख का दोनों मल्टीपल वैल्यूज़ अपडेट हो गए। ये था हम लोग का मल्टीपल वैल्यूज़ का। और अगर सबको करना है तो डायरेक्ट वेयर क्लोज नहीं डाल देंगे, तो सबको। एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अभी अगर मेरे को एक वैल्यू डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एल नेम नहीं एफ नेम दे दिया, एफ नेम इक्वल टू अब्बास ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं है। तो ये क्या करेगा F5 करूँगा और अभी सिलेक्ट करूँगा, तो अब्बास की वैल्यू निकल गई। इसको फिर से इंसर्ट करना है, तो है ना हम लोग के पास इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, तो इसकी वैल्यू मैंने दे दिया 81 और होम एंड तक गया, होम से सिलेक्ट F5 किया और इसको सिलेक्ट कर दिया, तो आ गया फिर से। ये था हम लोग का डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट और रिकॉर्ड्स तो क्या करेगा, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो ये सब डिलीट हो जाएगा। If it is possible to delete all rows in a table without deleting the table, this means that the table structure, attributes and index will be indicated. The following SQL statements delete all rows in the customer table without deleting the table. Delete from customers. Select किया F5. 4 rows affected. इसको सिलेक्ट किया फिर से F5 कर दिया, तो आ गए एम्प्टी वैल्यूज़। अभी फिर से इंसर्ट करना है 80, 95, 165। अभी लोग को फिर से मैं इंसर्ट कर दूंगा और इसको अगेन सिलेक्ट, तो मेरे वैल्यूज़ आ गए। ये था डिलीट ऑल्सो। फिर आता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल द फॉलोइंग एसक्यूएल ड्रॉप द एग्जिस्टिंग टेबल्स। अभी अगर मैं ड्रॉप टेबल करूँगा कस्टमर्स को, तो पूरा टेबल मेरा डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट क्या करता है, सेम जैसा हम लोग ने अभी डिलीट द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट यूज्ड टू डिलीट द डेटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। जैसा अभी इसने किया था वैसा ट्रंकेट का करता है। देखो ट्रंकेट, इसका कमांड देख लेते। ट्रंकेट टेबल का नाम ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स। इसको सिलेक्ट किया F5 कर दिया, इसको सिलेक्ट करूँगा एग्जीक्यूट, तो डायरेक्ट चला गया।
आपके पास दो वेज है डिलीट करने का। ट्रंकेट का भी कमांड हो गया। फिर अपने पास आता है एसक्यूएल ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम। सपोज मेरे को अभी एक कॉलम ईमेल ऐड करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम कस्टमर्स, फिर ऐड कॉलम, तो ऐड कॉलम का नाम मेल और उसका डेटा टाइप वेरकेर 255 ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सिलेक्ट कर दिया, F5, ऑल्टर टेबल। अच्छा, हम लोग के लिए ऐड कॉलम का रहेगा। ऐड क्या, कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट कस्टमर्स बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट और यू डोंट हैव परमिशन। ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, हम लोग ने कस्टमर डायरेक्ट ले रहे थे। अभी ये देखो, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। नल क्यों दिखा रहा है, उसका हम लोग ने कोई वैल्यू नहीं दिए थे तो उसका डिफ़ॉल्ट नल दिखाएंगे। ये भी ऐड हो गया। ऑल्टर कॉलम, ड्रॉप कॉलम आता है और ऑल्टर कॉलम अभी ड्रॉप करना है तो सेम ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, ऐड की जगह खाली ड्रॉप कॉलम मेल वेरकेर। इसका ज़रूरत नहीं है हम लोग को, वेरकेर इधर इसका डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर दिया। सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, F5 कर दिया, अगेन सिलेक्ट ऑल और ये डिलीट हो गया, ड्रॉप कॉलम हो गया। फिर हम लोग के पास एंडिंग में आता है ड्रॉप कॉलम भी हो गया। ऑल्टर कॉलम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर कॉलम उसका डेटा टाइप। अभी सपोज अगर मेरे को इसका डेटा टाइप चेंज करना है, लाइक पर्सन आईडी लास्ट नेम का वेरकेर से अभी इंट करूँगा तो वो हो जाएगा। एड्रेस का भी वेरकेर है। अभी अगर इंट से, अभी ये इंट वैल्यूज़ है तो अगर मेरे को इंट से वेरकेर करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिलीट करना पड़ेगा डेटा। तो ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स, ट्रंकेट कर दिया। अभी ये एम्प्टी है। अभी मैं यहाँ जाके इसके ऊपर नाम ले लूँगा मल सल। अभी यहाँ मैं जाके अपडेट कर सकता हूँ। ऑल्टर टेबल पर्सन्स, ऑल्टर कॉलम जो भी है, ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नाम क्या है आईडी, उसका डेटा टाइप क्या रख दूंगा, वेर केयर 255। बिकॉज कॉलम आई डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल कस्टमर, पर्सन आईडी है, सॉरी। हो गया सक्सेसफुली। अभी कमांड को अगर मैं इंसर्ट करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। पर्सन आईडी में आ गया AL। और अगर मैंने विदाउट ट्रंकेट किया होता और उसके अंदर वैल्यूज रहती तो एक एरर दे देता, कैन नॉट कन्वर्ट इंटीजर टू कैरेक्टर। इसके लिए मैंने पहले उसको वो कर दिया। ये ड्रॉप कॉलम करना है। सपोज मेरे को पर्सन आईडी को ड्रॉप करना है तो ये अभी जैसा ऑल्टर टेबल कस्टमर और उसका ड्रॉप कॉलम पर्सन आईडी और उसको सिलेक्ट किया, F5 से एग्जीक्यूट किया। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और ये डायरेक्ट आ गया। तो हम लोग ने जो भी कवर किया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिए हम लोग SQL का,
क्या क्या है एसक्यूएल, किसके लिए स्टैंड होता है, क्या करता है, आरडीबीएमएस का इंट्रोडक्शन दिया, पहला सिंपल और डेटाबेस का टेबल क्या है, फिर सेमी कॉलन और वो क्यों आते हैं, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स क्या है वो दे दिया। फिर सेकंड में हम लोग ने डेटाबेस कैसा क्रिएट करते हो ड्रॉप करते हो वो सीखे। फिर डेटा टाइप्स, पूरा जो एसक्यूएल के अंदर हम लोग ने डेटा टाइप्स का पूरा एक एक चीज़ डिस्कस किए। और थर्ड में हम लोग ने जो भी एसक्यूएल टेबल के अंदर कमांड्स है वो पूरे हम लोग ने आज एक वीडियो में ये सब कर दिए। होप आप लोग को समझा होगा। अगर आपको कुछ समझा नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से वो रिपीट कर दूंगा। थैंक यू।